So again, good morning kids, class 9th. As you know कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सिलरेशंस और एक्सिलरेशन के कुछ रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए थे और हम लोगों ने क्लास को छोड़ दिया था एट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड इट्स ग्राफ. तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है. फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम उसे ग्राफ से डिराइव करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड या एक्सिलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, जो मैं कल की क्लास में आपको समझा दूंगा. आज की क्लास में हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कवर करनी है. देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन विच आर गिवन बाय गैलीलियो गैलीली. ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो हम लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे. वी हैव टू टेक वी नॉट की बजाय हम लोग इसे u लेंगे. Is this clear? So v is your initial velocity, v is your final velocity, u is your initial velocity. I'm going to repeat it again. u is the initial velocity and v is the final velocity, जो कि यहाँ पर v नॉट से दिखाई हुई है initial velocity और v से दिखाई हुई है final velocity. Okay, तो the first equation of motion is v is equals to u plus a t, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. This is known as Galileo's first equation of motion. Is this clear? Now second, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को इसने जैसे यहाँ पर x से शो किया है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे लेटर S. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज शोन बाय लेटर S. तो S इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. This is your equation number 2. Okay, S is equals to ut plus half at square. ठीक है, and the last and final equation is v square is equals to u square plus 2 as. Okay, in the notebook you have to write these equation of motion, not these. Okay, so v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as. I'm going to repeating once again. V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time, and s is the displacement. In all the 3 equations they represent the same. All set? So in the notebook you have to write these 3 equations of motion. Okay, now as you know हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पढ़ी थी और उसे थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि उस सिचुएशन में जब मोशन होता है, पैराबोला पाथ बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रहती है, कंटिन्यूस डिक्रीज होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है, ऐसा कुछ डिस्कस किया था. दैट मीन्स अगर हम लोग एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की प्रेजेंस में किसी ऑब्जेक्ट को ये वाला मोशन करवाते हैं, if we throw the object upwards and it again comes to backward, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको लिखना है.
याद रखना है चैप्टर ग्रेविटेशन में वापस रिपीट होगी, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पे वापस पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। सो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन in case of acceleration due to gravity is written as, there are two cases. First, if we throw the body upward from the surface of the earth, and in the second case if the body falling freely downwards. Okay, so these are the two cases. So in this case we have to use these three equation. The only difference is the acceleration due to gravity, this acceleration is replaced by acceleration due to gravity of the earth, or we can say acceleration due to gravity of the planet. Rest of the portion remains same. For example, the equation becomes V is equals to U plus GT. Okay, V is equals to U plus GT. Then S is equals to U plus half GT square. Okay, and the third equation becomes V square is equals to U square plus 2GS. ठीक है। Now the thing is that I have written plus first over there. Okay, so in that condition these three equations represent when the body falls down freely under the gravitational influence, जब बॉल freely fall में नीचे की तरफ गिर रहा है. If we work done against the gravity in the upward direction, then the only difference is यहाँ पर प्लस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं माइनस से. So the equation becomes V is equals to U minus GT. Okay, S is equals to U minus half GT square, and the last one is V square is equals to U square minus 2GS. Clear? So this is the motion in the straight line. This is the motion under the influence of acceleration due to gravity when the body falls down freely, and this is the motion when we throw the body upward from the earth. Is this clear? Now next thing is average acceleration. Describe how fast the velocity is changes with respect to the time. So average acceleration is written as change in velocity with respect to change in time. So velocity we know it is delta S upon delta T, or we can say delta X upon delta T. This delta sign represent change. So delta V means change in velocity, delta X means change in displacement, and delta T means change in time. So यहाँ पर देखो नीचे equations लिखी हुई है. When the body is coming vertically downward, this case बेटा, तो these three equations of motion are written with having positive sign, and if we throw the body vertically upward, तो यहाँ पर ये wrong है, ये ध्यान रखना. मैंने आपको इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर समझाई है. ऑल सेट? तो यू हैव टू कॉपी दिस एंड दीज थ्री पैटर्न्स. ओके, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी वी ऑलरेडी नो मीटर पर सेकेंड होती है. एवरेज एक्सिलरेशन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्सिलरेशन, और नेगेटिव एक्सिलरेशन मीन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिटार्डेशन आर. ठीक है, is depend on the direction. Suppose the velocity is in this direction. If the acceleration is in this direction, then it is considered as yes positive, and the acceleration is in opposite direction, then it is considered as negative. This is known as acceleration and this is known as retardation. Okay, now we have one more term, that is instantaneous acceleration.
जैसे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वैसे ही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन है. दैट मीन्स द एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. दैट मीन्स सपोज यहाँ पर एक्सिलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये चल रहा है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर एक्सिलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज हमें लगा 1 मिनट. तो आई वॉन्ट टू नो कि 44 सेकेंड पे आपका एक्सिलरेशन कितना था. दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट एक्सिलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन. ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन इज जीरो वेयर द स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कर्व, ये मैं आपको कल पूरा एक साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझा दूंगा. सबसे पहले हम लोग कल की क्लास में एक ग्राफ से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और वेरियस टाइप ऑफ वेलोसिटी और वेरियस टाइप ऑफ एक्सिलरेशन के ग्राफ भी डिस्कस करेंगे. आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन? This type of motion, if the object is moving in a circular path, is known as circular motion. If the speed of the object is constant, that means there is no change of acceleration. That means this type of motion is known as uniform circular motion. In this kind of motion, the object moves on the circle and with फिक्स्ड स्पीड. बट हमने पहले डिस्कस किया था द डायरेक्शन चेंज्ड बाय द टाइम, सो द वेलोसिटी चेंज, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरेशन. लेकिन हमें पता है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. अब हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी मतलब स्पीड तो फिक्स है लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी. हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सिलरेशन. और इसी एक्सिलरेशन को हम लोग नाम देते हैं centrifugal acceleration. Okay, and centrifugal acceleration is always directed. Suppose ये center है तो centrifugal acceleration is always directed towards the center of the circular motion. Now kids, एक और important बात है कि जब हमारे पास लीनियर मोशन था तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली. जब हमारे पास इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल था, दैट मीन्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तब भी हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली. ठीक है, अब उनमें दोनों कंडीशन हम लोगों ने लिख दी कि वो व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड एंड व्हेन द बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड. ठीक है, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन तो यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? दिस इज नॉट कंप्लीटली इन योर सिलेबस बट यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना है. तो इन दिस केस v is replaced by this sign. This sign is known as omega. क्या बोलते हैं इसे? ओमेगा. अगर ये लीनियर वेलोसिटी है मतलब स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी है तो क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस एंगल चेंज होता है सॉरी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. सिमिलरली जब u की बात करते हैं तो u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे ओमेगा और नीचे 0 लगाएंगे और इसे प्रोनाउंस करेंगे ओमेगा नॉट. ओके, देन एक्सिलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय दिस साइन अल्फा. ठीक है, t रिमेन्स t एंड डिस्प्लेसमेंट एज इज रिप्लेस्ड बाय एंगल थीटा. क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है सपोज इस पोजीशन पे और वो यहाँ तक मूव करता है तो पहले उस विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर उसकी पोजीशन यहाँ थी, फिर रेस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन यहाँ पर है, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर हम लोग सबको क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टाइम रिमेन्स सेम. सो द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स ओमेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस टी था, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, सॉरी हो जाएगा ये अल्फा टी. ओके, सेकेंड क्या था? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s को हमने किससे रिप्लेस किया? थीटा. तो थीटा इज इक्वल्स टू यू टी मीन्स ओमेगा नॉट
t plus half at square means plus half alpha t square. Is this clear? And the last is v square, that means omega square, that will be equal to v square, that means only omega square, sorry beta, v square is equals to u square, that means omega naught square plus 2as means 2 alpha theta. These are the three equations of motion used in circular motion. And circular motion, if the speed is changes with respect to the time, then it is known as non-uniform circular motion, and the speed is does not change with respect to the time, then it is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो किड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है. नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं वो डिस्कस करूंगा. एंड द सेकेंड थिंग कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, these three equation of motion are derived with the help of graphical representation. Okay, hope you understood the class. Thank you.